Firstly, good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel Teacher's Life. Today I am here to tell you something, a topic. The topic is English. Now I am going to tell you about English. What is the importance of English in this modern era for every students? So my dear students, let us start. I think so that English is a language. English is a language. English is not a language, but it is an international language. But what is language? Language is a source of communication. Language is a source of communication. It means every what we think and what we want to say something to other. The medium of sharing thinking and ideas to other is called communication. So, source of communication is called language, such as Hindi and Sanskrit. Urdu is a language. Same, English is a language. But English is an international language. It is spoken all over the world and understood by everyone. It is popular language and it is funny language. So, my dear friend, today we read English. And let's start. English, it means English is a language. And language कैसे आता है? तो लैंग्वेज आपका साउंड से आता है. कैसे? साउंड से. और साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अल्फाबेट को. साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अल्फाबेट को. अब अल्फाबेट क्या होता है? तो अल्फाबेट इट मींस अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, या A to Z is called alphabet. A group of 26 letters is called alphabet, या A to Z is called alphabet, we can say. And what is alphabet and what is its use? So my dear students, alphabet को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला है कॉन्सोनेंट, वोवेल. एवरीवन यू नो कॉन्सोनेंट इट मींस व्यंजन. इसकी जो संख्या है, नंबर है 21. और आपका जो वोवेल है, वोवेल कितने होते हैं? तो 5. A E I O U, ये आपके वोवेल हो गए. लेकिन तीसरा जो पार्ट्स है वो है आपका है सेमी वोवेल. अब सेमी वोवेल क्या होता है? W और Y को हम लोग सेमी वोवेल बोलते हैं, क्योंकि एक कभी कॉन्सोनेंट का काम करते हैं तो कभी वोवेल का काम करते हैं. एग्जाम्पल में वेल, एल और वेल. आई विल डिस्कस अबाउट सेमी वोवेल नेक्स्ट वीडियो in details. So leave it. Then alphabet it means a group of 26 letter. And what is letter? Letter क्या होती है वो समझिए. Letter it means the smallest unit of English language is called a letter. The smallest unit of English language is called a letter. Example A, single letter को हम लोग बोलते हैं letter. Single C, single X, single Z, it means these are called letters. Once again we revise that what is English. English is a language. English is a language. Language क्या होती है? और source of communication is called a language. और language को represent करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? साउंड का. किसका? साउंड को. और साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अल्फाबेट. किसका? अल्फाबेट. और अल्फाबेट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर, या A to Z वी कैन से. एंड अल्फाबेट को डिवाइड किया 3 पार्ट में. पहला है कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट आपके 21 होते हैं. दूसरा है वोवेल जो कि आपके 5 होते हैं संख्या में, A E I O U. और थर्ड पार्ट में कहा था सेमी वोवेल जो कि आपका 2 होते हैं, W और Y, जो कभी कॉन्सोनेंट तो कभी वोवेल का काम करते हैं. अब व्हाट इज लेटर?
लेटर, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। Understand? Now we understand what is word. It means word. Word means a group of letters. A group of letters with complete meaning is called word. A group of letters with complete meaning is called word. And example, अगर हम लिखते हैं E, P और N, तो it is not a word because इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वहीं जब हम बात करते हैं पेन का, तो पेन का एक सही में अर्थ होता है, ये आपका वर्ड हो सकता है, लेकिन ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, लेकिन उसका कोई अर्थ होना चाहिए तो ही आपका वर्ड होगा, वरना वो वर्ड नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं वर्ड में हम लोग को पढ़ना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड में ही हम लोग को पढ़ना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो इट्स डिफिनेशन इज पार्ट्स ऑफ स्पीच रेफर्स टू द डिफरेंट रोल्स that words play in English language. Parts of a speech refers करता है different roles, words का अलग अलग रोल इंग्लिश लैंग्वेज में, या हम कह सकते हैं कि लेक्सिकल कैटेगरी टू विच अ वर्ड इज असाइन्ड बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन इन अ सेंटेंस। यानी कि अपने काम के अकॉर्डिंग सारे शब्दों को अपने अपने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सेंटेंस में, तो इसे हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। लेक्सिकल कैटेगरी टू विच अ वर्ड इज असाइन्ड बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन इन अ सेंटेंस, यानी फंक्शन के अनुसार सारे वर्ड्स को अपने अपने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और उसी को हम लोग पढ़ते हैं कि इस सारे वर्ड्स का काम क्या है सेंटेंस में, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ अ स्पीच हमारे होते हैं 8। तो 8 में सबसे पहला होता है नाउन। व्हाट इज नाउन? Noun, it means noun is a naming word. Noun is a naming word. And what is pronoun? Pronoun, it means a word used in place of noun. तो ऐसा शब्द जो नाउन के बदले प्रयोग किया है तो उसे बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं। एंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की बात किया जाए तो अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। वैसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन, ये रहे नाउन, ये रहे प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करेगा उसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव बोलेंगे। वर्ब की बात किया जाए तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? तो क्वालिफाइज अ वर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। 6 नंबर प्रीपोजिशन। 6 नंबर प्रीपोजिशन, इसमें छुपा हुआ है पोजीशन। तो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, जब हम वन बाय वन सबके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में तब। अभी यहाँ पढ़ना है हमें सिर्फ प्रीपोजिशन। इट मींस रिलेटिंग वर्ड, यानी कि दो शब्दों के बीच में जो रिलेशन को दिखलाए उसे बोलते हैं रिलेटिंग वर्ड। इट मींस प्रीपोजिशन। कंजक्शन, व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन इज कनेक्टेड वर्ड। कंजक्शन मीन्स कनेक्टिंग वर्ड। इट मीन्स दो लोगों को मिलाने वाले वर्ड को बोलते हैं कंजक्शन। इट मीन्स कनेक्टिंग वर्ड। इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि अचानक से आपके माउथ से जो आवाज निकलती है उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरजेक्शन। मान लीजिए आप बैठे हुए हैं और आपके सामने कोई ऐसा स्नेक चला है, तब क्या कौन सा आवाज निकलेगी आपके माउथ से? तो जो आवाज निकलेगी उसी आवाज को बोलते हैं हम लोग इंटरजेक्शन। मींस सडन, अचानक से, फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, अचानक से निकलने वाले शब्द को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। नाउ वी लर्न अबाउट सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? लेट्स, चलिए हम जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस, इट मींस सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। A group of words with complete meaning is called sentence. Is called sentence. और sentence, किसी भी sentence को बनाने के लिए हम subject, verb और object का यूज करते हैं। ये तीन हमारे बेसिक है। It means sentence बनाने के लिए arrangement of words बिल्कुल जरूरी है। अगर arrangement of words हमारा सही नहीं होगा तो मेरा सेंटेंस सही नहीं होगा।
मान लीजिए हमने कह दिया कि बच्चों को काट कर आम खिलाओ, बच्चों को काट कर आम खिलाओ, तो क्या यह सेंटेंस सही है आपके थिंकिंग से? बताइए। बच्चों को काट कर आम खिलाओ, क्योंकि गलत है। क्यों गलत है? काट कर आम खिलाओ, क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही नहीं है। क्यों? ये जो आम है और ये जो बच्चे हैं, इनको अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो यहाँ पे अगर हम आम देते हैं तो आम को काट कर बच्चों को खिलाओ, तब ये सेंटेंस सही हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही नहीं रहेगा तो हमारा सेंटेंस सही नहीं होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में उसका अरेंजमेंट भी होनी चाहिए। जब तक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स नहीं होगा तब तक आपका सेंटेंस सही नहीं होगा, और आप लोग गलती यही करते हैं। और इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम लोग जानते हैं, स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, जो आप लोग टेंस पढ़ते हैं, बनाते हैं और स्ट्रक्चर ही भूल जाते हैं। आप लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को याद करते करते थक जाते हैं और याद नहीं होता है, और वही गलती कर देते हैं कि प्रेजेंट का पास्ट और पास्ट का प्रेजेंट और प्रेजेंट का कंटीन्यूअस तो पास्ट कंटीन्यूअस। गलती यही आप लोगों से होती है, क्योंकि आप लोगों को स्ट्रक्चर नहीं पता होती है, स्ट्रक्चर पता होती है लेकिन आप लोग भूल जाते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स अगर आपका सही नहीं होगा तो आपका सेंटेंस नहीं बनेगा, आपका सेंटेंस गलत होगा। अब यहाँ बात करते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होती है? तो सब्जेक्ट की बात किया जाए तो डूअर, इट मींस डूअर। सेंटेंस में जो काम को करने वाला होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, इट मींस डूअर। डूअर मींस सब्जेक्ट, जो काम को करता है उसे हम बोलते हैं डूअर, इट मींस सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की जगह पे क्या क्या आ सकता है? तो सबसे पहला आपका वर्ड है नाउन, यानी कि सब्जेक्ट की जगह आपकी नाउन ले सकती है। इसके अलावा आपका जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट की जगह आ सकता है। और तीसरा नंबर पे आपका है नाउन इक्विवेलेंट, यानी नाउन के समतुल्य, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के समतुल्य कोई ऐसा वर्ड तो वह सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है। और आप लोग जानते हैं, पढ़े भी होंगे, जिरंड। जिरंड एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड को नाउन बनाकर के यूज किया जाता है और इसको सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जाता है। तो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, जिरंड पढ़ते हैं। तो जिरंड का यूज हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंफिनिटिव वर्ब। इंफिनिटिव वर्ब का भी यूज हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग नाउन के इक्विवेलेंट है, यानी कि नाउन के समतुल्य है। तो नाउन की जगह यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट इट मींस जिरंड और इंफिनिटिव वर्ब का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब हमारे होते हैं एक्शन वर्ब। तो वर्ब हमारे होते हैं दो। वर्ब को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो मेन काम करते हैं उसे बोलते हैं मेन वर्ब बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब को की हेल्प करते हैं सेंटेंस में वॉइस टेंस बनाने में, उसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जहां तक बात की जाती है तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राइमरी एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज में आपके इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब आपके प्राइमरी एक्सिलरीज में आते हैं। सेकंड होता है आपका मॉडल एक्सिलरीज, जिसमें आपके शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू, मस्ट, ये सब आपके मॉडल में आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की बात किया जाए तो अ वर्ड दैट इज अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट के काम से प्रभावित होता है, ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट के काम से प्रभावित होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
और एग्जाम्पल की बात कर दे, चलिए, राधा इट्स अ मैंगो। अब इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट क्या होगा, तो काम कौन कर, खाना कौन खा रहा है, मैंगो कौन खा रहा है, तो राधा खा रही है, तो राधा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे वर्ब की बात की जाए तो इट्स आपका वर्ब है, और राधा जो काम कर रही है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो आपका मैंगो क्या है, मैंगो, तो मैंगो आपका हो गया ऑब्जेक्ट। सिंपल शब्दों में हम इसको जान सकते हैं। तो राधा आपके सब्जेक्ट हो गए, यानी कि डूअर, काम करने वाले, इट्स आपका मेन वर्ब, और मैंगो आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब समझते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और इसी जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है इसी को हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में सिंटेक्स एरर। अगर आपका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही नहीं है तो इसी को इंग्लिश में एक टॉपिक दिया गया है सिंटेक्स एरर, यानी कि आपको खोजना है कि कहाँ पे एरर है, कहाँ पे गलती है सेंटेंस में, और उसी टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं सिंटेक्स एरर। तो ये टॉपिक हम लोग को नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। अब एक आपका एक नया टॉपिक है फ्रेज। क्या है? फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। सेम थिंग्स है, यहाँ पे विद था, यहाँ पे आउट लगा दिए, विद आउट, यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का एक समूह तो होगा लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होगा। शब्दों का एक समूह तो होगा लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे एग्जांपल राम एंड श्याम, हमने तो 3 शब्द यहाँ पे लिख दिए, लेकिन क्या कि इसका कोई अर्थ है? इसका कोई अर्थ है? राम और श्याम, क्या राम एंड श्याम? या फिर आप कह सकते हैं कि शब्दों का एक ग्रुप जिसका अर्थ कुछ और हो। जैसे मान लीजिए बात करते हैं बैंक ऑन। अब बैंक ऑन मीन्स क्या होता है? तो बैंक पर नहीं, तो बैंक ऑन का मतलब होता है विश्वास करना, यानी कि शब्दों का ग्रुप तो है लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसका अर्थ कुछ और है, या इसका कंप्लीट मीनिंग ना हो, उसे हम बोलते हैं फ्रेज। क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। और फ्रेज हमारे 3 होते हैं। पहले होते हैं नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। तो ये था आज का टॉपिक। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो एक बार हम फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश क्या होती है? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बोली जाती है। और इंग्लिश लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि अपनी बातों को व्यक्त करने का एक तरीका है लैंग्वेज। और लैंग्वेज आती कैसे है? तो लैंग्वेज हम लोग साउंड के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और साउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग अल्फाबेट के द्वारा। अल्फाबेट क्या होता है? 26 लेटर को हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। और अल्फाबेट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉन्सोनेंट, वोवेल और सेमी वोवेल। कॉन्सोनेंट आपके 21, वोवेल 5 और सेमी वोवेल 2, W और Y। इसके अलावा आपके लेटर्स क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड अ लेटर। And what is word? तो word it means a group of letters with complete meaning is called a word। और word में हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं। तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यह है कि हमारे जो इंग्लिश ग्रामर में जो जितने सारे वर्ड्स हैं, यानी कि उन सबको उनके काम के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हम लोग को पढ़ना होता है नाउन। नाउन क्या होता है? तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। pronoun place word that is used in the place of noun, जो noun के बदले यूज किया उसे बोलते हैं pronoun बोलते हैं। एडजेक्टिव की बात किया तो नाउन और pronoun को जो क्वालिफाई करता है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं। और वर्ब की बात किया जाए तो वर्ब इज एक्शन वर्ब। और वर्ब हमारे 2 टाइप के होते हैं, पहले होते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं हम लोग एडवर्ब की। तो एडवर्ब क्या करता है? तो एडवर्ब हमारे वर्ब को क्वालिफाई करता है। प्रीपोजिशन, इट मींस प्री मींस पोजीशन, पोजीशन मींस अधिकार। जो वर्ड शब्दों के बीच अधिकार को दिखलाते हैं, वर्ड शब्दों को रिलेट करते हैं, उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। एंड कनेक्टिंग कंजक्शन, इट मींस
कनेक्टिंग वर्ड, इट मींस दो शब्दों को जोड़ने वाले वर्ड को बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ड बोलते हैं। और लास्ट आपका रहा 8 नंबर में इंटरजेक्शन, इट मींस इंटरजेक्शन, इट मींस सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, वैसे शब्द जो आपके मुंह आपके माउथ से अचानक से निकल जाते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन बोलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस हमारे होते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एंड सेंटेंस को बनाने के लिए सही तरीका है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, इट मींस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अगर आपका अरेंजमेंट सही नहीं होगा सेंटेंस में तो आपका सेंटेंस सही नहीं होगा। तो इसी को इसके बाद हमने पढ़ा जैसे सेंटेंस में स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर में आपके सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं। तो व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इट मींस डूअर, जो काम को करता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब एक्शन वर्ड होता है और आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इट मींस सब्जेक्ट के काम से जो प्रभावित होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और लास्ट हमने आज पढ़ा फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, इट मींस शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ अलग निकले, अर्थ ना हो, उसे हम बोलते हैं फ्रेज बोलते हैं। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।